नमस्ते बच्चों। चैप्टर 3। अमित व मायाराम जी जब अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कोई सज्जन उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बात करने पर पता चला कि वे उसी शहर के एक धनी व्यक्ति थे जिनका नाम धनीमल था। When Amit and Mayaram ji reached their home, they saw a gentleman was waiting for them. On talking, it was found that he was a rich man from the same city, whose name was Dhanimal. मायाराम व धनीमल जी की कुछ समय तक बातें होती रही। धनीमल जी अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने उसका फोटो मायाराम जी के सामने रख दिया। शादी में 5 लाख रुपए लगाने के लिए कहा। मायाराम जी and Dhanimal ji kept talking for some time. Dhanimal ji came with his daughter's wedding proposal. He placed her photo in front of Mayaram ji and said he will spend 5 lakhs rupees for the marriage. मायाराम जी दहेज विरोधी थे। उन्होंने धनीमल जी से कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम भी एक लड़की देखकर आए हैं, पसंद भी आ गई है सबको। वे नहीं चाहते थे कि एक बड़े घर की लड़की लेकर वे अपने बेटे को बेच डाले। उसके पाँवों में वे बेड़ियाँ नहीं डालना चाहते थे। Mayaram ji was against the dowry system. He said to Dhanimal ji that there is no need for this money. Zarurat means need. We have already seen a girl. Everyone has also liked the girl. They did not want a girl from a big house to sell their son. Bechna means to sell. They did not want to put fetters on their son's feet. Fetters means chain. मायाराम जी के मना करने पर भी धनीमल जी ने कहा, मेरी तो बस 3 बेटियां ही हैं। मेरे मरने के बाद सब कुछ इन्हीं का है। Even after Mayaram ji's refusal, Dhanimal ji said that he have only 3 daughters. Everything belongs to them after I die. यह कहकर वे उठ खड़े हुए और चलते चलते कह गए कि आप विचार कर लीजिएगा, मैं कल आकर मालूम कर लूँगा। Saying this, he stood up and said that you think on it, I will come and know tomorrow. सरिता को फोटो उनके सामने था। माताजी, पिताजी, अमित व उसकी बहन सभी ने उस पर विचार किया। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। Sarita's photo was in front of them. Father, mother, Amit and his sister all discussed the matter. They did not understand what to do. तभी उनके पिता बोले, भाई लड़की तो मीनू भी अच्छी है। साधारण परिवार की है तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी है, काफ़ी गुणवती लगती है। उसके बात करने का तौर तरीका मुझे बहुत पसंद आया। Then his father said, Meenu is also good. Father said that Meenu belongs to an ordinary family, but she is educated and seems to be very nice. I liked the way she talked. माताजी शायद कुछ पैसे की तरफ झुक चुकी थी। वह बोली, रूप रंग में तो कम धनीमल जी की लड़की भी नहीं है। फोटो दिखाते हुए बोली, देखो फोटो, कैसे तीखे नाक नक्श है इसके, और भाई तैर तरीके आदत का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। But his mother was attracted to money. She said that Dhanimal ji's girl is also not less beautiful. She said by showing Sarita's photo. How sharp features are hers. The behavior is known only by living together. तभी अमित की बहन मीनू का फोटो भी उठा लाई।
सरिता और मीनू दोनों के फोटो सामने रखकर देखने लगी। सरिता के कटे बाल उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे थे, पर नाक नक्श में मीनू से ज्यादा अच्छी नहीं थी। Then Amit's sister brought Meenu's photo also. She started looking at the photos of both. Sarita's cut hair was adding beauty to her face, but features were not beautiful than Meenu. तभी अमित ने माताजी से प्रश्न किया, माँ, बड़े घर की लड़की क्या तुम्हारे साथ रह सकेगी? क्या हमारे घर के वातावरण में घुल मिल सकेगी? Then Amit asked to mother, Mother, will the girl from a big house be able to live with you? Can she live in our home environment? माँ को लगा शायद अमित सरिता के रिश्ते को तैयार नहीं है, इसलिए वह बोली, बेटे, व्यवहार का तो किसी का भी पता नहीं है, न तो सरिता के बारे में ही कुछ कहा जा सकता है और न ही मीनू के बारे में। व्यवहार का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। Mother felt that perhaps Amit does not want to marry Sarita. Mother said, Son, we do not know about the behavior of anyone. Neither can be said about Sarita nor about Meenu. Behavior is known only when we start living together. फिर भी माँ, देख लो तुम्ही, कहकर अमित चुप हो गया। But mother, you only decide. After saying this, Amit became silent. उसके पिताजी को भी इस बात का आभास हो रहा था कि बड़े घर की लड़की जो ढेर सारा दहेज अपने साथ लाएगी, शायद परिवार वालों के साथ मिलजुल कर न रह सके। His father was also feeling that a girl coming from a rich family who will bring lots of dowry with her may not live together with the family members. बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि मायाराम जी अमित के साथ जब अपने घर पहुंचे तो एक सज्जन घर पर बैठे हुए उनका इंतज़ार कर रहे थे। बातचीत से पता चला कि वह उसी शहर के एक धनी व्यक्ति थनीमल हैं, जो अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने आए थे। अपनी बेटी सरिता का फोटो उन्होंने मायाराम जी के सामने रख दिया और शादी में 5 लाख रुपए लगाने की बात भी कर दी। उनके जाने के बाद माताजी, पिताजी, अमित और उसकी बहन ने उस विषय पर विचार किया। मायाराम जी दहेज विरोधी थे, लेकिन उनकी पत्नी का झुकाव दहेज की तरफ अधिक है। मीनू के फोटो से सरिता के फोटो का मिलान किया गया। कटे हुए बालों वाली सरिता यद्यपि नाक नक्श में मीनू से सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके साथ आने वाले 5 लाख की तरह माँ का झुकाव था। अमित के हृदय में यह बात थी कि सरिता उनके परिवार में घुल मिल नहीं पाएगी, परंतु अमित की माँ ने धन के सपने देखने शुरू कर दिए। मायाराम जी की और अमित की एक न चली, परंतु अमित की माँ ने तो धन के सपने देखने शुरू कर दिए थे, इसलिए उनके तर्कों के सामने मायाराम जी की एक न चली। अंत में यही निश्चय किया गया कि सरिता का रिश्ता मंजूर किया जाए और मीनू के यहाँ मना का पत्र लिख दिया जाए। But Amit's mother started dreaming of wealth. Therefore, in front of her arguments, Mayaram ji couldn't say anything. At last, it was decided to approve Sarita's proposal, and a letter of refusal should be written to Meenu's house. लटके वालों के दिल में भी अंदर द्वंद्व होता है। जब किसी लड़की को देखने के बाद उसका रिश्ता लेने से इनकार कर देते हैं, वही अंदर द्वंद्व अमित के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में था।
There is also a conflict in the hearts of the boy's family when they refuse to have a relationship after seeing a girl. The same conflict was in the heart of all the members of Amit's family. मीनू के यहाँ कैसे मना किया जाए, सभी इस सोच में लगे थे। तभी माताजी को एक युक्ति सूझी। वह बोली, मीनू की बहन कैसी लगी? मीनू की बहन तो मीनू से ज़्यादा सुंदर है ही, पिताजी ने उत्तर दिया। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? रिश्ता मीनू का लेने गए थे, न कि उसकी बहन का। Everyone was thinking how to refuse Meenu's proposal. Then mother got an idea. She said, "How was Meenu's sister?" "Meenu's sister is more beautiful than Meenu," father replied. "But why are you asking all these? We went to propose Meenu, not her sister." अरे तुम समझते नहीं हो, माताजी बोली। कल ही उन्हें पत्र लिख दो कि हमें तुम्हारी छोटी बेटी पसंद है। यदि आप हमारे यहाँ शादी करना चाहते हैं तो मीनू से नहीं बल्कि आशा से कर दे। Hey, you don't understand, mother said. Tomorrow itself write a letter to them that we like your younger daughter. And if you want to get married in our family, do it with Asha. But not with मीनू। तो इससे क्या होगा? पिताजी बड़े विस्मित स्वर में बोले। So what will happen with this? Father said in astonished voice. अरे होगा क्या? छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले थोड़े न कर देंगे। बस रिश्ता अपने आप ही छूट जाएगा। माताजी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बोली, जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई हो। They will not do the marriage of younger daughter before the elder. Automatically, the proposal will break up. Mother spoke very happily as she made an important plan. परंतु यह क्रूर योजना पिताजी की समझ में नहीं आई। वह किसी लड़की वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, परंतु जब सबकी यही इच्छा थी तो उन्हें पत्र लिखना ही पड़ा। But father did not understand this cruel plan. He did not want to hurt the heart of a girl's family, but everyone had this desire. He had to write a letter. पत्र लिखते समय पिताजी बोले, अरे अमित की माँ, मुझसे तो ये सब नहीं हो पा रहा है। देखो ना, हमारी भी बेटी मधु है। यदि कोई हमारे साथ ऐसा करे तो क्या बीतेगी हमारे दिल पर। Father said while writing the letter, "Hey Amit's mother, I am unable to do all this. Look, we also have a daughter. If someone does this with us, how will we feel?" माँ गर्दन हिलाकर बोली, तुम तो बहुत कोमल दिल के हो। जब पैसा पास होता है तो कोई लड़की घर में नहीं बैठी रहती। अच्छी से अच्छी जगह रिश्ता हो ही जाता है। अमित की माँ पिताजी को उकसाती रही और पत्र लिखने को मजबूर कर दी। Mother shook her head and said, "You are a very soft-hearted person. When there was money, no girl would sit in the house. The relationship would have been in a best place." Ukusati means provoking, encouraging, instigating. Here it means instigating, means behkana. Amit's mother kept on instigating father and forced to write the letter. Majboor means helpless or compelled. पत्र लिखने के बाद पिताजी को लगा कि शायद उनसे कोई घोर अपराध हो गया है।
उनकी मनस्थिति विकल हो गई। उन्हें आभास था उस पीड़ा का, उस दुख का जो पत्र मिलने के बाद लड़की वालों को होना था। After writing the letter, the father felt that he might have committed a big mistake. His mind was disturbed. He is aware of the grief that the girl's family is going to face after receiving the letter. देखो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि मीनू के यहाँ कैसे मना किया जाए, सभी इसी सोच में पड़े थे। अमित की माँ ने सुझाव दिया कि कल ही उन्हें पत्र लिख दो कि हमें तुम्हारी छोटी बेटी पसंद है। यदि आप हमारे यहाँ शादी करना चाहते हैं तो मीनू से नहीं बल्कि आशा से कर दे। इसका परिणाम यह होगा कि छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले नहीं करेंगे, बस रिश्ता अपने आप ही टूट जाएगा। मायाराम जी को यह क्रूर योजना समझ में नहीं आई। वे किसी लड़की वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। उनका कहना था कि हमारी भी एक बेटी है, यदि कोई हमारे साथ ऐसा करे तो क्या बीतेगी हमारे दिल पर। पत्नी के तर्क और हट के कारण मायाराम जी की एक न चली। वे पत्र लिखने पर मजबूर हो गए। पत्र लिखने के पश्चात उन्हें लगा कि वे शायद कोई घोर अपराध कर रहे हैं। उनका मन व्याकुल हो गया। उन्हें आभास था कि पत्र मिलने पर लड़की वालों को कितनी पीड़ा होगी। तो बच्चों, धन्यवाद।